Welcome back for the next lecture of the hydraulic engineering, in which we have started for the unit number 1, that is introduction to open channel flow, and we have discussed some of the part from the same, which includes classification of the channels, then geometrical properties of the channels, and the various types of the open channel. That part we have discussed in a last lecture. Now we'll go for the next part of a discussion, that is about an velocity distribution in an open channels. Okay, so what does it mean about and how the velocity used to appear or is to get distributed in channels when the flow is flowing through it? That part we are going to discuss now. So if you consider in any open channel and the velocity distribution in the same, or the velocity of the flowing fluid we can say, then in that case we is to observe that the velocity of the flow is a less or a zero at its boundaries we can say, and its magnitude is to go on increasing and increasing once we starts moving from the boundaries towards the inside. We suppose that this is a channel or a canal we can say, a natural canal I have considered over here, and suppose that this is a top surface of the water which is flowing through this particular river or stream we can say. And then this has a flow depth y. Okay, then we is to observe that whatever the velocity of the flowing fluid is there, that velocity of the flowing fluid is a zero exactly at the boundaries, means at the boundaries there is no velocity of the fluid. And once we start moving away from this boundary towards the center we can say, or inside we can say, then we is to observe that the velocity goes on increasing and increasing. It means that here at this point this particularly velocity is a zero. Then we will go inside, then we is to observe that the sum of the points, those points indicates the magnitude of the velocity as the same one. Means if you will measure the velocity at those different points which I have marked over here, those points indicates the velocity or some magnitude of the velocity which is common. Suppose that as now we are moving from the boundary, that is a zero velocity, to the some velocity, we'll consider that the magnitude of the velocity for those points as a say an 0.4 meter per second, time being I'm assuming. And if we'll join these points, then we used to have an isohole as like a contour. So contour line indicates or joins the points of a same elevation, as like the isohole is a line which joins the points of a same velocity we can say. Now similarly, once again if we'll move inside that or away from this boundary towards the inner periphery we can say, again now suppose that we have started the measurement of the velocity somewhere else here. Then if suppose that we have found here as a velocity as a say 0.45, I'm assuming it's a velocity as a 0.45, then number of the points we is to observe the magnitude of the velocity as a 0.45. Suppose that those are the points indicating the velocity as a 0.45, and if you are joining the points by a smooth line, then that line is indicating the isohole for a 0.45 or a line of a same velocity we can say. Likewise, we used to come across the increase in the velocity as we are moving away from the periphery. Means up to the center we can say that here somewhere else we used to found the point of a maximum velocity. Say this velocity as a 0.8 meters per second. I'm assuming here in 0.8 meter per second, and one and the side by it we used to have a velocity contours like this of different magnitudes of the velocity. Now the question is that why it happens so, or why such things are happening. So this was a 0.4, this is a 0.45, suppose that this is a 0.5, this is a 0.7 we'll consider, and this is a 0.8, that is a maximum velocity point I have shown here in. Okay, it may happen that practically we will come across the 0.45, then somewhere else here bend and all those things. But as an ideal case, I have treated these things like this. Now question is that, as I mentioned, that why such type of the velocity variation is to occur. As we are knowing that if you consider the boundaries, at the boundaries there occurs a boundary layer separation. It means that when the liquid is flowing or the water is flowing, and if it is coming in a contact with this boundary,
In that case, surely there will be a high friction or opposition to the flow, we can say. So likewise, there will be the no flow flowing at the boundaries. I will take another one example. Suppose that there is an ground surface we'll consider, and we have just opened a tag herein. हमने क्या किया है, मान लो कि ये हमारा ग्राउंड सरफेस है ऐसा, मान लो कि आपका ग्राउंड है तो वहां पे मान लो कि आपने टाइलिंग किया है, टाइल यहाँ पे हमने डाल दी है, फर्श डाल दिया है, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक ग्लास पानी यहाँ पे छोड़ दिया ऐसा, एक ग्लास है हमारे पास ऐसा पानी का भरा हुआ, और वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसा छोड़ दिया, उल्टा कर दिया उसको। तो क्या होता है, जब पानी आगे बढ़ता है तब हमें उसका जो फ्रंट रहता है, वाटर फ्रंट, दैट वाटर फ्रंट वी यूज्ड टू ऑब्जर्व लाइक दिस, ये उसका वाटर फ्रंट रहता है। यानी कि ये जो आगे बढ़ जाने वाला जो पोर्शन रहता है, ये ऐसा रहता है, सेंटर में कहीं पे, तो नॉट एग्जैक्टली सेंटर, बट समवेयर एल्स below the top surface and above the bottom, we can say that a point is moving in a forward direction. वो जो एक पॉइंट जो रहता है, वो लिक्विड जब हमने यहाँ पे, हमारा जो ग्लास है जब हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया था, तब उसमें से पानी निकल गया, वो पानी जब अभी फर्श के ऊपर बहने वाला है, तब वो क्या होता है, ऐसा बहते वक्त या ऐसा सीधा नहीं जाता है। मान लो कि मैंने और एक यहाँ पे कलर लेके उसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, यानी कि ऐसा फ्रंट नहीं जाता है आगे, है ऐसा ही। मान लो कि ये उसका डेप्थ है, मैक्सिमम डेप्थ उसका इतना है, फर्श है, पानी अंदर नहीं जाने वाला है फर्श में, तो ये ऐसा उतने ही डेप्थ पे नहीं जाता है कभी भी, ऐसा ही फ्रंट उसका नहीं जाता है। यानी कि जो आगे वाला पोर्शन रहता है, वो आगे वाला पोर्शन कभी भी ऐसा वर्टिकल स्ट्रेट नहीं होता। तो वो कैसा होता है, इट यूज्ड टू हैव अ बेंड, it used to have a corner, we can say like this. It means here at the boundary, here we are finding that waterfront is getting separated from the point. It means that here the boundary, at the boundary velocity is 0, and once we are moving in upward, the velocity is increasing, and after some time or after some depth, the velocity is again decreasing, we can say. That point which is leading over there, here this point is leading, that point indicates the point of a higher velocity, we can say. यानी कि अब ये क्या होता है, यानी कि क्यों ऐसा होता है, यानी कि जब भी कैनाल में से पानी फ्लो होता है, रिवर हो या स्ट्रीम हो, तो क्या होता है, बहुत बार उसके पाथ में कॉर्नर्स रहते हैं, बेंड्स रहते हैं। वो कॉर्नर्स और बेंड्स जो रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, those corners and bends causes the velocity vectors. अभी जो क्या होगा, अभी मान लो कि सीधा जा रहा है, लेकिन आगे जाके क्या है, इसको ऐसा बेंड है, ऐसा बेंड होके बाद में आगे जाने वाला है पानी। तो क्या होगा, पानी यहाँ से स्ट्राइक होगा और ऊपर आगे जाएगा, बाद में थोड़ा सा नीचे भी, पीछे भी आ जाएगा। इट मींस इट यूज्ड टू हैव एन वेलोसिटी वेक्टर लाइक दिस, एंड वो वेलोसिटी वेक्टर जो रहता है उसमें वो क्या कर देता है, दैट इट यूज्ड टू क्रिएट द वेलोसिटी कंपोनेंट्स नॉट ओनली अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, यानी कि जो पाथ है हमारा उसके हिसाब से ही, यानी कि उसके अलोंग ही वेलोसिटी नहीं रखता वो, फिर क्या करता है, इट यूज्ड टू क्रिएट द वेलोसिटी इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन और नॉर्मल, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और उसको परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स वाई जेड, वी कैन से। लाइकवाइज ये तीनों डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट्स आ जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मैक्रो एनालिसिस जो रहता है, वो मैक्रो एनालिसिस में हम खाली वो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट रहता है अलोंग एक्स डायरेक्शन, दैट कंपोनेंट वी यूज्ड टू कंसीडर। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट व्हिच आई हैड राइट नाउ, तो उसमें क्या होता है, अनदर वन पैरामीटर गवर्निंग रहता है, किस लिए, कि मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट के लिए, वो क्या रहता है, एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द चैनल और द कैनाल, वी कैन से। अभी एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द चैनल और कैनाल, व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डेप्थ टू द विड्थ ऑफ द कैनाल और चैनल, वी कैन से। aspect ratio AR, we can say that it is the ratio of depth, canal depth or flow depth, we can say, to the width of the canal or the channel. अभी इसमें क्या होता है, जितना एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा रहेगा, जितना एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा रहेगा, if aspect ratio is more, in that case we can say that depth is more for a particular width, यानी कि width हमारा मान लो कि कांस्टेंट है, लेकिन जो डेप्थ है वो ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा, मान लो कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है, टाइम बीइंग आई एम कंसीडरिंग दैट अ कैनल और द चैनल इज अ रेक्टेंगुलर, ओके, इट्स अ विड्थ एज अ b, मान लो कि दिस इज अ कांस्टेंट। अभी यहाँ पे जो फ्लो का डेप्थ है, मान लो कि ये y है। अभी इसका जो एस्पेक्ट रेशियो जो अभी मान लेंगे, मान लो कि उसका टोटल डेप्थ जो है d है, ओके, अभी एस्पेक्ट रेशियो जो रहेगा दैट विल बी फ्लो डेप्थ y डिवाइडेड बाय बेस विड्थ b रहेगा।
मान लो कि यहाँ पे फ्लो का डेप्थ जो है हमारा 1 मीटर है और बी हमारा 1 मीटर है, यानी कि एस्पेक्ट रेशियो हो गया हमारा 1। अभी क्या हो गया, मान लो कि वो जो कैनल है हमारा रेक्टेंगुलर है, उसमें क्या हो गया, बहुत बड़ा बारिश आने लगा, बहुत बड़ा बारिश हो रहा है ऑलरेडी, उसमें से वाई डेप्थ के हिसाब से 1 मीटर से पानी जा रहा था, उसका बेस विड्थ तो सेम है, लाइन कैनल है। अभी क्या हो जाएगा, उसका जो फ्लो का डेप्थ है वाई, वो वाई बढ़ने वाला है। अभी मान लो कि वाई हमारा 2 मीटर्स हो गया। अभी एस्पेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा, एस्पेक्ट रेशियो विल बी 2/1, दैट इज 2 हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, जब भी फ्लो का डेप्थ बढ़ता है यानी कि एस्पेक्ट रेशियो बढ़ता है, तब वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो पॉइंट होता है, that point used to appear close to the top surface or close to the water surface we can say। यानी कि यदि मान लो आपका डेप्थ बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का पॉइंट जो रहेगा वो बॉटम से ज्यादा टॉप तक रहेगा, नहीं तो टॉप सरफेस ऑफ वाटर से वो उसके क्लोज क्लोज रहेगा। ओके। और यानी कि जो भी हमारे नैरो चैनल्स रहते हैं, नैरो चैनल्स जहाँ पे विड्थ कम है डेप्थ ज्यादा है, वहां पे जो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट जो रहता है, दैट मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट यूज्ड टू बी क्लोज टू द वाटर सरफेस वी कैन से। दैट इज द आइडिया। अभी जो मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट पे वो लोअर डेप्थ पे रहेगा, कहाँ पे, जहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा है, क्योंकि wherever that maximum sorry aspect ratio is more, in that case our flow depth will be more. It means in such cases that maximum velocity point will be so much closer to the top water surface we can say। अभी वहां पे वो मैक्सिमम पॉइंट वेलोसिटी पॉइंट क्या करता है, मान लो कि सर्टेनली अभी हमारा आपका फ्लो पास हो रहा है कैनल से, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो है, मैक्सिमम फ्लो का पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं पे तो है, प्रैक्टिकली दैट विल बी गेट फाउंड आउट। अभी यहाँ पे मान लो, अभी यहाँ पे क्या कितना है आपका, एक फ्रिक्शनल सरफेस है, बाउंड्री है, पूरा के पूरा इसको रेजिस्टेंस है फ्लो के लिए। तो क्या होता है, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट होता है वो क्या करता है, सरफेस वेलोसिटी जनरेट करता है। वो उसके साइड वाले बगल वाले जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स वी कैन से, उन सब मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, आगे ढकलता जाता है। और उसके हिसाब से क्या होता है, whatever the water surface is there, that surface water above that it used to have a velocity। It means that maximum velocity point used to generate the surface velocities। okay, having the magnitude यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा किसका, सरफेस वेलोसिटी का, that will be less than that of the point of maximum velocity। यानी कि जहाँ पे जो 0.8 वाला है वो क्या कर रहा है, अभी सरफेस पे जो भी उसके ऊपर आने वाला जो पानी है, साइड वाले जो मॉलिक्यूल्स है, वो सभी को आगे लेके जा रहा है। तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, वो लीडिंग रहता है, और बाकी जिसके एडजेसेंट में जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो वेलोसिटी पॉइंट रहता है, सॉरी उसका जो वेलोसिटी रहती है, दैट वेलोसिटी यूज्ड टू बी लेस एंड लेस। लाइकवाइज वी कैन से एज पर द फील्ड ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंटेशन कैरी आउट किए गए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं, उसके हिसाब से जो अभी हमने देखो कि यहाँ पे कैनल मैंने ले लिया है, इसका यदि हम if we'll drop that if we'll draw that velocity distribution along the depth of the channel we can say, then if this is a velocity, if this is a velocity and this is a flow depth which will be measured from the top surface, यानी कि यहाँ से आपकी फ्लो डेप्थ ए मेजर की जाएगी, कहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, तो इट इज फाउंड दैट नाउ एट द बाउंड्रीज द वेलोसिटी इज 0, यानी कि बाउंड्री यानी कि कहाँ, कैनल का बेड कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। So at this point the velocity is a 0, and once we are moving away from that boundary, in that case we used to have an velocity। यानी कि ऐसे हम जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाते हो तो, और टॉप सरफेस क्या होता है, फिर एक बार वो कम होता जाता है। यानी कि यहाँ पे मान लो, just I am considering that point herein, so up to this point we can say again the surface velocity is to observe as a less। okay, अभी ये ऐसा है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका कहीं पे तो यहाँ पे कम है, और यहाँ पे बीच में कहीं पे तो आपका वेलोसिटी ज्यादा आता है, बीच में कहीं पे तो आपका वेलोसिटी ज्यादा आता है। यानी कि जो भी फ्लो हो रहा है वो सब का जो वेलोसिटी है सब मॉलिक्यूल्स का, वो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डिफरेंट रहता है। So by practical considerations we can say, as per the observations and all those things, what it has been found that the velocity, that is a maximum velocity we can say, that maximum velocity point used to range in between the 0.2 to the 0.8 times the depth। यानी कि टोटल डेप्थ जो आपका रहेगा, मान लो कि आपका टोटल डेप्थ जो है वो 1 मीटर है, कहाँ से मेजर किया आपने, यहाँ से 0 मीटर है वहां पे डेप्थ,
और ये आपका डेप्थ यहाँ पे 1 मीटर है। वेलोसिटी आपका यहाँ पे 0 है और आपका वेलोसिटी आगे जाके कहीं पे तो कम हो रहा है, ऐसा ग्राफ आएगा यहाँ पे, ऐसा आ जाता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड रहता है, ये कंटिन्यूस रहेगा और ये डॉटेड पॉइंट आता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार विंड अपोजिट डायरेक्शन में आया, सेम डायरेक्शन में फ्लो क्या आ गया, तो वेलोसिटी सरफेस का कम ज्यादा होता रहता है। और ये रहेगा आपका टॉप सरफेस वाटर का, वाटर लेवल इंडिकेटर वी कैन से। तो यदि आपका डेप्थ जो है वो 1 मीटर है, यहाँ से हमने माप लिया, ओके, तो क्या होता रहता है, जो वेलोसिटी पॉइंट, जो मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट जो आपका होता रहता है, दैट मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट यूज्ड टू रेंज इन बिटवीन 0.8 टू 0.6। यानी कि मान लो कि आपका यहाँ पे कहीं पे तो जो डेप्थ है फ्लो का, दिस इज अ 0.2, यानी कि हमने 1 मीटर लिया है, तो आई विल कंसीडर दिस एज अ 0.2 मीटर्स डायरेक्टली, दिस फ्लो डेप्थ एज अ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0 सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि मान लो कि यहाँ पे आपका कहीं पे तो 8 है, 0.8 मीटर है। It means this is the velocity we can say at 0.8 meters. So this is the velocity at 0.8 y, this point. Similarly, this y indicates the velocity at 0.8. This is a phi at 0.2 y. So इन दोनों के बीच में कहीं पे तो आपका वो मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट रहता है, तो वो कहीं पे भी आ सकता है इन बिटवीन दैट। सो इन जनरल व्हाट वी यूज्ड टू डू फॉर कंसीडरिंग द एवरेज वेलोसिटी, अभी हमें मालूम पड़ गया कि जो भी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी एक पॉइंट पे 0 है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है और बाद में कम होता जाता है। तो हमें एनालिसिस के लिए क्या करना पड़ता है, वी नीड टू गो फॉर अ एवरेज वेलोसिटी। हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज वेलोसिटी लेना पड़ता है, और उसका जो मैक्सिमम वेरिएशन जो रहता है वेलोसिटी का, वो कहाँ पे रहता है, 0.2y और 0.8y के बीच में। यानी कि जो भी आपका डेप्थ है, यानी कि डेप्थ आपका 0.2y और 0.8y, जितना भी आपका डेप्थ रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 0.2 और 0.8। यहाँ पे मैंने 1 मीटर ले लिया है, तो 0.2 मीटर्स और 0.8 मीटर्स के बीच में जो आपका वेलोसिटी वेरिएशन है, वो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा है ऐसा मान लेंगे। तब जो एवरेज वेलोसिटी जो हमें लगेगा, वो हमें कहाँ पे लेते हैं, we used to take that average velocity in between the velocity of 0.2 and 0.8, यानी कि इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी रहेगा वो हमें एवरेज वेलोसिटी, और इसके बीच में कहीं पे तो मैक्सिमम आता है। तो what we used to do, we used to take the average velocity as equals to velocity at 0.8 y we can say plus the velocity at 0.2 y, it's the average. So this indicates the average velocity that used to exist at a 0.2, or a velocity at the 0.2 meters depth we can say, and velocity at the 0.8 meters the depth, meters depth we can say. Okay, so this velocity distribution कहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि जो भी हम रिवर गेजिंग करते हैं, स्ट्रीम गेजिंग करते हैं, यानी कि जो फ्लो पास होता है, डिस्चार्ज हमें जब मेजर करना पड़ता है बाय एरिया वेलोसिटी मेथड, किसका, नदी का होने दो या स्ट्रीम का होने दो, उस वक्त हमें दैट एवरेज वेलोसिटी वी नीड्स टू कैलकुलेट और वी नीड्स टू फाइंड आउट। ठीक है, अभी ये हो गया नेचुरल चैनल के लिए। अभी मान लो कि आपके पास रेक्टेंगुलर चैनल है, डीप है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट जो है अभी हमारा कहाँ पे आ रहा था, मान लो कि यहाँ पे था 0.8 हमारा, ये 0.8 और 0.8 एक्चुअली नीचे आना चाहिए था। I'll just project it. So just arbitrarily I'm assuming that it is somewhere else here. Arbitrarily I'm assuming that that is a phi max we can say. That is a maximum velocity. Arbitrarily I have assumed over here. It ranges between 0.2 to 0.8 depth. So this such type of the distribution is to exist in an open channel flows. So whatever the sketch I have drawn, I have taken the reference from the standard books, reference books. And as per the practical considerations, they have mentioned that whatever the sketch they have drawn over there, it is as per the practical considerations, यानी कि जब हम कैनाल में या स्ट्रीम में या रिवर में फ्लो मेजरमेंट करेंगे, तब हमें एग्जैक्टली नहीं तो नियर बाय ऐसा हमको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। यानी कि 2 पॉइंट्स रहते हैं, नहीं तो बहुत सारे पॉइंट रहते हैं जहाँ पे 0.8 मैक्सिमम रहेगा, उसको ज्वाइन करने के बाद आइसोबल मिलेगा 0.8 का, बाद में उससे कम रहेगा, ऐसा करके करके हम जब बाउंड्री पे जाएंगे तो बाउंड्री पे जो वेलोसिटी रहेगी
that velocity is to be exactly a zero velocity we can say. यानी कि मेन कॉज जो है सरफेस वेलोसिटीज का वो कौन है, मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट है। वो कहाँ पे एग्जिट होता है और उसका जो पोजीशन रहता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द चैनल्स। दैट एस्पेक्ट रेशियो इज नथिंग बट द डेप्थ टू द विड्थ। why that is a flow depth, why we can say to the width we can say। खाली यहाँ पे हम टोटल डेप्थ लेने से कैनल का कुछ मतलब नहीं है। बहुत सारा कैनल का डेप्थ है, बहुत बड़ी वैली है, लेकिन उसमें जो पानी बह रहा है वो खाली 1 मीटर पे बह रहा है, तो वहां पे we can't say that now we can't say that the maximum velocity point will be near or close to the water surface। यानी कि यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कंसीडर द डेप्थ ऑफ द फ्लो। यानी कि फ्लो का डेप्थ ज्यादा है, विड्थ कम है, तब एस्पेक्ट रेशियो आपका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। न्यूमरेटर ज्यादा है तो एस्पेक्ट रेशियो भी ज्यादा रहेगा, isn't it? और जब जब एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा रहेगा तब तब आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट है वो मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट का आपका वाटर सरफेस के क्लोज रहेगा। जैसे ही डेप्थ आपका कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे ही आपका डेप्थ बढ़ता जाएगा वैसे ही वो ऊपर जाएगा। यानी कि मान लो कि 1 मीटर के लिए विल कंसीडर दैट नाउ फॉर 1 मीटर ऑफ अ फ्लो डेप्थ, नाउ कंसीडर दैट फॉर 1 मीटर ऑफ अ फ्लो डेप्थ दैट फी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी का पॉइंट जो है, मान लो कि इट इज एट अ डेप्थ ऑफ 0.6 मीटर्स। कहां से, फ्रॉम द टॉप वी कैन से, वाई के टॉप से 0.6 मीटर पे आ रहा है, ऐसा हमने अज्यूम किया। अभी मान लो कि जो फ्लो का डेप्थ है आपका वो क्या है हमारा, मान लो कि 10 मीटर्स है। कितना है, 10 मीटर्स है। सो 10 मीटर्स के लिए कितना रहेगा, दैट विल बी 6 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस। यहाँ पे बॉटम सॉरी टॉप से रहेगा, यहाँ पे 0.6 मीटर पे था, यहाँ पे 6 मीटर पे आएगा। यानी कि कंपेयर टू द टोटल डेप्थ वी कैन से whenever that flow depth is to increase, in that case the aspect ratio is to increase and that maximum velocity point is to appear to the close and close to the water surface. This is I have considered as an example. It doesn't mean that it is a practically happening that always it is at a 0.6 or it is always at a 0.4 we can say, it doesn't happen, it is to change। यानी कि दूसरे जो फैक्टर्स उसके लिए डिपेंड पैरामीटर्स रहेंगे उसको वैरी करने के लिए, दैट विल बी द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ द चैनल्स आल्सो वी कैन से, कि जैसा भी कैनल आपका स्मूथ रहेगा, रफ रहेगा, उसका डेप्थ बढ़ेगा, विड्थ चेंज होता जाएगा, विड्थ कांस्टेंट रहेगा एज पर दैट। बट इन जनरल वी कैन से दैट दिस वेलोसिटी or maximum velocity point in the channel is dependent on the aspect ratio, that is a depth to the width we can say। और जैसे ही आपका डेप्थ बढ़ेगा, यानी कि जितना आपका ए ज्यादा रहेगा, क्या बोलते हैं हम, फ्लो डेप्थ ज्यादा रहेगा, डीप रहेगा और नैरो रहेगा चैनल, उसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट है which will be at a lower surface we can say, that is close to the lower surface। okay, and for wider channels, यानी कि जो हमारी यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर कैनल लिया था, मान लो कि आपका रिवर है, स्ट्रीम है, तो उसके लिए क्या रहेगा, वो मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट विल बी समवॉट डीपर देन द योर प्रीवियस केस। ओके, so after getting an average velocity now we got, but for a measurement of the velocity, यानी कि जब भी हम वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए कैनल का हो या चैनल का हो, उसको मेजरमेंट करने के लिए यदि फ्लोट यूज करते हैं, फ्लोट यानी कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, मान लो कि वुडन प्लैंक है या तो एक बॉक्स है वुडन का, नहीं तो क्या किया हमने, एक छोटा सा रफ वुड लिया है, ओके, और उसको हमने वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए यूज किया। तो उसमें क्या किया जाता है, एक सेक्शन लिया जाता है रिवर का, नहीं तो स्ट्रीम का, नहीं तो कैनल का, जिसका लेंथ हमें मालूम होता है। ओके, मान लो कि यहाँ पे हमने ए टू बी ले लिया, उसका डायमेंशन है 10 मीटर्स व्हिच इज नोन टू अस। हमें अब क्या करना है, यूजिंग द फ्लोट वी आर मेजरिंग द वेलोसिटी। अभी फ्लोट हमारा सरफेस पे है, तो जो वेलोसिटी जो हमें मिलेगा वो हमें सरफेस वेलोसिटी मिलेगा, उसको मैं ps बोल देता हूँ। तो क्या करते हैं वहां पे, जब हम उसको यहाँ से रिलीज करते हैं, द मोमेंट व्हेन वी आर रिलीजिंग फ्रॉम दिस पोजीशन A, we used to start the stopwatch। It means the time is 0 at the point A। Now we used to measure the time required for that wooden plank or wood we can say to reach the point B, where it is to cover the distance 10 meter। मान लो कि यहाँ पे it is to have or it is to require a 10 seconds। Now we are knowing the distance between A and B, it is a 10 meter।
we are knowing time required for that object to reach from point A to the B by a floating action. That will be floating action है, यानी कि जो वेलोसिटी वाटर का सरफेस का रहेगा उतनी ही वेलोसिटी से वो क्या होगा, उसके साथ वो जो फ्लोटिंग मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, वो आगे जाता रहेगा, वो मूव होता जाएगा. So we calculated or we measured a time as a 10 second, distance at 10 meter. So surface velocity we will get by formula distance upon time. So Vs is equals to S by T. Distance at 10 meter, time है 10 seconds. So velocity will be 1 meter per second. यानी कि यहाँ पे जो velocity मिला हमें वो surface velocity मिल गया. लेकिन हमें मालूम है surface velocity is different than the average velocity. And average velocity we need to have for a calculations. यानी कि जब भी हमें एनालिसिस करना पड़ता है, डिस्चार्ज निकालना पड़ता है, उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, Q is equals to A into average velocity निकालना पड़ेगा. एरिया हम नाप लेंगे, ओके. एवरेज वेलोसिटी भी चाहिए, यहाँ पे हमें खाली सरफेस वेलोसिटी मिल गया. सो हाउ टू कन्वर्ट दैट? सो फॉर by experimentation and by whatever the researchers they have put forth their conclusions, put forth those conclusions. From that it has been found that surface velocity और average velocity का जो relation है that is to exist like this: phi average is equals to k times phi s. यानी कि phi average जो velocity है that always used to be a less than the surface velocity. So k यानी कि उसका multiplying factor है surface velocity का, वो उसका k k का जो magnitude रहता है that magnitude varies between 0.8 to the 0.95. That magnitude of k is varies between 0.8 to 0.95. It means अभी surface velocity आपका 1 मीटर पर सेकंड आया था. अभी मान लो कि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है उस कंडीशंस के लिए वो 0.8 है, तो उस केस के लिए जो हमारा एवरेज वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा, वो 0.8 into 1 आएगा. इट मींस इट विल बी 0.8 meters per second. This relation is as per the experimentations those are carried out by the various researchers. Okay, so by using this relation now we will get the average velocity and it will be utilized for finding the discharge passing through that particular channel or a particular river or a stream. Okay,